sensation on the foot. Now, one nerve is for controlling the movement, other nerve is for sensation. Both have their own importance. Sensation नहीं रहेगा तो आपका चप्पल आपके फुट से स्लिप आउट हो जाएगा. मूवमेंट नहीं रहेगा तो मसल भले ही इंटैक्ट रहे, अगर नर्व भी इंजर्ड है तो मूवमेंट भी नहीं रहेगा. नर्व मसल को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि उसको मूव करना है. And the third and the seventh structure was the Achilles tendon, जो मैंने आपको बताया. And एक artery which supplies the artery is the main branch, posterior tibial artery which supplies the foot. So all these structures work out. So these are the structures which I just explained. We go to the photograph. So this was the injury on the. This is the back of the foot. Photo का upper part is towards the foot, lower part is towards the leg. Now, this area was the area which was majorly, there was a small area over here, but this was the major area. ये जो आपको structure, if you can identify this structure, this is the tendon-Achilles. मतलब thickness आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद कि कितना मोटा structure है ये, because this is pushing the complete body weight forwards. And this is after the closure. After surgery is after the closure. And this is a small video. This was the tendon Achilles, the Achilles tendon which was injured. This is the muscle. After this muscle, there is directly the bone. So everything from the skin till the bone was cut. जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा that is the nerve and उसके नीचे blood vessel was injured. This was complete from left to right side, complete back side of the leg. These are the other muscles and this is after the repair. So everything is now in continuation. The small structure here is the nerve which has been repaired. The nerve will take time to heal completely, but it has been repaired now. It will gradually heal. So everything has gone back to its place and will gradually heal. This is the Suran nerve. This is the tendon Achilles tendon which is repaired with Marcos method. This is the tibial nerve which is repaired. Underneath the tibial nerve is the tibial artery which has been anastomosed. It is not visible, that is under the tibial nerve. This is the Suran nerve. This is another nerve which brings the sensation, which was repaired. Now, I was helped by the team of from the anesthesia department, and we have a very good group of technicians who help us because it is not possible for one person to do the complete job. So we had done this. It took almost 3.5 hours to 4 hours for the case to be done successfully. If you could make out in the video. So मेडिकवर हॉस्पिटल खारगर नवी मुंबई में प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज डिपार्टमेंट जो डॉक्टर अतीव सिंह के लीडरशिप में हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आज 31 ईयर ओल्ड बॉयज का जो हमने लाइफ सेविंग सर्जरीज किया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज किया, जिसकी वजह से आज जो उनकी लाइफ में आगे जो इंजरीज की वजह से डिसेबिलिटीज आ सकती थी, जिसको हम लोग रोक पाए. एंड आज अवेयरनेस के लिए हम ये माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो भी ऐसी इंजरीज होती है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एंड जब भी ऐसे इंडस्ट्रीज में होती है, होम में होती है, राइट जगह पे एंड राइट समय पे ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है, ये आज इस केस के लिए हमने सक्सेसफुल सर्जरीज करके बताया है कि हम लोग जहाँ पे भी सर्जरीज प्लान करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, तब एक मल्टी स्पेशलिटीज टीम इन्वॉल्व हो जाती है एंड उसी की वजह से एक सक्सेसफुल सर्जरीज की जाती है. सो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अतीव सिंह फॉर डूइंग दिस सर्जरीज इन मेडिकवर हॉस्पिटल. थैंक यू. ठीक है. हम लोग के पास एक 31 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आए थे. उनका घर में ग्लास टूटने की वजह से बैक ऑफ द लेग में इंजरी हो गई थी. नाउ दिस इंजरी इतनी डीप हो गई कि स्किन से लेके बोन तक सारे स्ट्रक्चर्स कट हो गए थे. सारे स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है 5 मसल, 1 टेंडन, 2 नर्व, 1 आर्टरी कट हो गया था, विच इज
इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द लेग। इसकी हम लोगों ने सर्जरी की है, हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स को रिपेयर किया है, ब्लड सप्लाई रीएस्टैब्लिश किया है, नर्व का एनास्टोमोसिस किया है एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को 2 दिन के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया है। द पेशेंट इज नाउ रिकवरिंग। पेशेंट विल बी फॉलोड अप जब तक उसकी कंप्लीट हीलिंग ना हो जाए। मेडिकवर का टीम वर्क आपके कैसा रहा और पेशेंट को कितना खर्चा आया और कितने दिन में उसको डिस्चार्ज? ये पेशेंट सीजीएचएस स्कीम के अंडर था, तो पेशेंट को डायरेक्टली कोई एक्सपेंस नहीं थे एंड मेडिकवर टीम में जो इन्वॉल्वमेंट था, फर्स्ट वाज इमरजेंसी डिपार्टमेंट टीम एंड देन एनेस्थीसिया टीम, जिनको लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया एज इन 4 hours ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन कर पाए एंड फाइनली द टेक्नीशियन टीम हु वाज देयर टू हेल्प मी ड्यूरिंग द सर्जरी। सबने मिल के, नर्सिंग स्टाफ सबने मिल के केस को मैनेज किया है एंड इसीलिए पेशेंट 2 दिन में, इतने मेजर इंजरी के बाद भी 2 दिन में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन घर पे हैं, डिस्चार्ज हो गए। सही जगह पे उपचार लेना जनता को क्या सजेस्ट करेंगे कि इसका महत्व क्या है? कभी भी कोई इंजरी होती है, कोई भी इंजरी को छोटा मत समझिए। उसके ऊपर चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए एंड जानिए कि आपको किस डॉक्टर के अंडर, किस स्पेशलिटी के अंडर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो स्पेशलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाइए। मेडिकवर हॉस्पिटल में सारे ही डिपार्टमेंट, सारे ही सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, सो यहाँ पे हम लोग सारा ट्रीटमेंट्स अवेल कर सकते हैं।